Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read class 11th history, chapter 4, Central Islamic Land. In this chapter, I have discussed about the biography of Prophet Muhammad. I have discussed the caliphates and also discussed about some conflicts, disputes, and the expansion of Islam, rise of Islam on the worldwide level. We have discussed the various other important topics like how can he expand, what was their capital, and after the death of Prophet Muhammad, how can they manage their whole administration. These are all I have discussed in my previous video. Today we are going to read the Umayyad and centralization of polity. This is also the important topic. You have to take it very seriously because so many questions arise here. अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम पूछता है. व्हाट इज द उमैयाद, व्हाट इज द अब्बासाइद रिवोल्यूशन, ब्रेक ऑफ द खिलाफेट्स, राइज ऑफ इस्लाम. यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं. आपको इन पे फोकस करना है, देखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लार्ज टेरिटरीज destroyed the caliphates based in Medina and replaced it with an increasingly authoritarian polity. The Umayyad is implemented a series of political measures which consolidate their leadership within the Ummah. The first Umayyad Khalifa, Muwayba, moved his capital to Damascus and adopted the court ceremonies and the administrative institutions of the Byzantine Empire. He also introduced the hereditary succession and persuaded the leading Muslims to accept his son as his heir. These innovations were adopted by the Caliphs who followed him and allowed the Umayyad to retain power for 19 years and the Abbasid for 2 centuries. The Umayyad state was now an imperial power, no longer based directly on Islam, but no statecraft and the loyalty of the Syrian troops. There were Christians adverse in the administrations as well as Zoroastrians, scribes and bureaucrats. However, Islam continued to provide the legitimacy to their rule. The Umayyad always appealed for unity and suppressed the rebellions in the name of Islam. They also retained their Arab social identity during the reign of Abd al-Malik 685 to 705 and his successors. Both the Arab and Islamic identities were strongly emphasized. Among the measures Abd al-Maliki took were the adoptions of the Arabic as the language of administrations and the introductions of an Islamic coinage, the gold dinar and silver dirham that had been circulating in the caliphates were coins of Byzantine and Iranian coins, denarius and drachma, with the symbol of crossed and fire altars, and Greeks and Pahlavi, the language of Iran. Inscriptions, these symbols were removed and the coin now
carried Arabic inscriptions. Abd al-Maliki also made a highly visible contribution to the development of an Arab Islamic identity by building a Dome of Rock in Jerusalem. My dear student, in this paragraph, if you will see seriously, then you find that the Umayyad and centralization of one thing. Umayyad, they were trying to manage the conflicts which was happening during that time. Actually, in the Islamic State, there are so many communities. So many areas were invaded by the Islams. Christian areas, Zoroastrian areas, nomadic areas, and the various Kabilas. It is problem for the administration that how can they take their services without any conflicts. उमैयाद ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. कहाँ तक वो सफल हुए, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं. कहता है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द लार्ज टेरिटरीज डिस्ट्रॉयड ए खलीफस. बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित जो खलीफत थी, खिलाफत थी, वो नष्ट हो गई. उसके स्थान पे बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्रों ने ले लिया. उमैयाद ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर अनेक नेतृत्व सुदृढ़ हो गया. उम्मा के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे शासकों का अधिकार हो गया. कहता है कि पहले उमैयाद खलीफा मुवैया के 10वीं को अपनी राजधानी बनाए. फिर बाइजेंटियन साम्राज्य के राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया. उसने वंशगत अधिकारों की परंपरा भी प्रारंभ की और प्रमुख जो मेन प्रोमिनेंट जो मुस्लिम्स थे को मना लिया कि वे अपने पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें. जो पावरफुल लीडर्स थे उनको इस बात के लिए एग्री कर लिया कि वो लोग वो बात माने जो उनके पावरफुल जो वो कहें. कहता है कि इस तरीके से एक नई व्यवस्था उमैयाद ने स्थापित की. एक नई व्यवस्था उमैयादों ने स्टेब्लिश किया जिसमें उन्होंने बड़े और प्रमुख मुस्लिम सरदारों से इस बात की स्वीकृति प्राप्त कर ली कि वो लोग उसके पुत्रों को उसका वारिस स्वीकार कर लें, उसका सक्सेसर स्वीकार कर लें. उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी नवीन परिवर्तन अपना लिया, मतलब अपने पुत्र को सक्सेसर बनाना, जिसके फलस्वरूप उमैयाद 90 वर्ष तक और अब्बासीद 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे. ये परंपराएं चलती रहीं और दोनों एक दूसरे की व्यवस्था को अपना लिए. इस तरीके से व्यवस्था काफ़ी करीब लगभग 2 दशकों तक चलती रही. उमैयाद राज में अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था. अब वो सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन, कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था. शासन में ईसाई सलाहकार और उसके अलावा जरतुश लिपि अधिकारी भी शामिल थे. लेकिन इस्लाम उमैयाद शासन की वैधता, उमैयाद जो थे वो इस्लामी शासन की वैधता को मानते थे. उमैयाद हमेशा इन चीज़ों पर फोकस करता था, देखता था, ध्यान देता था कि सब में बराबर एकता बनी रहे, सभी यूनाइट रहें. और इस यूनिटी के लिए उसने बहुत प्रयास किए, एकता के अनुरोध करते रहे और जो विद्रोह थे उसको इस्लाम के नाम पर दबाते रहे. उन्होंने अपनी अरब सामाजिक पहचान को बनाए रखी. एक शासक का नाम आता है अब्द अल मलिक. कहता है अब्द अल मलिक जो 685 to 705 तक शासन किया, ने जो नीतियाँ अपनाई उसमें अरबी को प्रशासन की मुख्य भाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल किया गया. जो खिलाफत में सोने की दिनार और चांदी की दिरहम चल रहे थे वे रोमन और ईरानी सिक्कों दिनेरियस और ड्रक्म की बस नकल मात्र थे, अनुकृतियाँ थी जिन पर सलीब और अग्निदेवी के चिन्ह अंकित होते थे. और यूनानी और पहलवी भाषा में कुछ इंस्क्रिप्शंस लेख लिखे होते थे. उन चिन्हों को अब्द अल मलिक ने हटवा दिया
और सिक्कों पर अब अरबी भाषा में कुछ लेख लिखवाए। अब्द अल मलिक ने यरूशलेम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया। उसने डोम ऑफ रॉक बनवाया यरूशलेम में और इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक कल्चर को प्रूफ करने का प्रयास किया। पिक आपके पास है, देखिए डोम ऑफ रॉक। आप डोम ऑफ रॉक की पिक्चर देख सकते हैं, कितना भव्य बनाया। अब अल मलकी ने इसको बनवा के इस्लामिक कल्चर को दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे सिक्कों को भी दिखाया गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अब्द अल मलकी के कॉइन रिफॉर्म क्या थे उनको दिखाता है, कॉइनेज रिफॉर्म। कहता है नीचे दिखाए गए अगर सिक्कों तो देखिए तो बाइजेंटियन मुद्रा प्रणाली में, अरब इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया, उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाइजेंटियन का बना सोने का सिक्का है। आप पहला पिक देखिए, बाइजेंटियम गोल्ड सॉलिडस दिनेरियस अरस शोइंग द एम्परर हरक्यूलिस एंड हिज टाउनसन। अब दूसरा देखिए, पोर्ट्रेट गोल्ड दिनार स्ट्रक बाई अब्द अल मलकी विद हिज नेम एंड इमेज, जो अब्द अल मलकी द्वारा अपने नाम से जो मुद्रा डाला गया सोने का दिनार, उसकी देखिए। और फिर दिनार का स्वरूप बदला, अब केवल उस पर पिक की जगह केवल लेखनी आ गई। द रिफॉर्म दिनार वाज प्योरली द एपिग्राफिक, इट कैरीज द कलमा देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड ही हैज़ नो पार्टनर, शरीक, एक और एक मात्र ईश्वर अल्लाह है और उसका कोई साथी नहीं होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आई थिंक यही लिखा हुआ है। ये आप इसको चेक करेंगे तो मालूम चल जाएगा। आप आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ। अब्द अल मलकी कॉइनेज रिफॉर्म, यू हैव टू रीड, आपको ये पढ़ना है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस द अब्बासीद रेवोल्यूशन। अब्बासीद रेवोल्यूशन क्या थी इन्हें देखते हैं। कहता है फॉर द सक्सेस इन द सेंट्रलाइजिंग द मुस्लिम पॉलिटी द उमैयाज पेड ए heavy price. A well-organized movement called Dawa brought down in Umayyad and replaced them with the Athar family of the Makkan origin. The Abbasid in 1750, the Abbasid portrayed the Umayyad regime as evil and promised a restoration of the original Islam of the Prophet. The revolutions led not only to change but dynasty but change in the political structure and culture of Islam. कहता है कि मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयाद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयाद वंश को उखाड़ फेंका। 750 तक आते आते या 750 में इस वंश की जगह, उमैयाद की जगह अब्बासियों ने ले लिया। अब्बासी मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमैयाद शासन को दुष्ट बताया और यह दावा किया कि वो पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसके सांस्कृतिक तत्वों में भी बदलाव दिखाई देते हैं। क्या बदलाव दिखाई देते हैं? कहता है द अब्बासीद अपराइजिंग ब्रोक आउट इन द distant region of Khurasan, eastern Iran, a 20 days journey from the Damascus on the fast horses. Khurasan had a mixed Arab-Iranian population which could be mobilized for various reasons. The Arab soldiers here were mostly from Iraq and resented the dominance of the Syrians. The civilian Arab of Khurasan disliked the Umayyad regime for the having made the promise of tax, concession and the privileges which were never fulfilled. As for the Iranian Muslims, the Mawali, they were exposed to the scorn of the race conscious Arabs and were eager to join any campaign to oust the उमैयाज। कहता है अब्बासियों का विद्रोह खुरासान इट मीन्स ईस्टर्न ईरान, खुरासान के बहुत दूर स्थित क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ
जहाँ पर दशमिक से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुँचा जा सकता था। कहता था कि ये जो पूर्वी ईरान था, वहाँ पे जो अब्बासियों का विरोध हुआ वो काफ़ी दूर था, जहाँ पे अगर बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हों तो दशमिक से वहाँ तक पहुँचने में 20 दिन लगता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिली जुली आबादी थी, वहाँ अरब भी थे और ईरानी भी थे, जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरिया लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। सीरियाई लोगों की जो गवर्निंग थी उस क्षेत्र में, उससे जो अरब से जो सैनिक आए थे वो उससे बहुत नाराज थे, इराक से जो लोग आए थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयाद शासन को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि उन्होंने करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वादे किए थे उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। उमैयाद ने कहा था कि हम टैक्स में कुछ छूट देंगे, लेकिन उन लोगों ने इनको छूट नहीं दिया, जिससे ये लोग बड़े उनसे असंतुष्ट थे। जहाँ तक ईरानी मुसलमान मवालियों का संबंध है, उन्हें अपनी जाति चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और वे उमैयाद को बाहर निकलने के किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। शामिल होने के इच्छुक थे। कह रहा है अरब्स आर वर ईगर टू ज्वाइन एनी कैंपेन टू आउट द उमैयाद के कह रहा है कि वो सारे जो कहता है कि जो अरब के जो मवाली थे, अरब के जो मुसलमान थे, जहाँ तक ईरानी मुसलमान थे जिन्हें मवाली कहा गया, अपनी जाति चेतना से, उनको हमेशा इंफीरियर दिखाया जाता था, जाति चेतना से ग्रस्त थे और अरबों का तिरस्कार उन्हें हमेशा झेलना पड़ता था। वे उमैयादों को बाहर निकालने की किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। वे हर हाल में उमैयाद को देश से निकाल देना चाहते थे क्योंकि उन्हें बार बार इन्फीरियरिटी फीलिंग्स कराई जाती थी कि तुम लोग ईरान के मुस्लिम्स हो, तुम लोग नीचे हो, हम लोग अरब के हैं, हम लोग प्रोफेट के नज़दीक वाले हैं, हम लोग उच्च किस्म के मुस्लिम्स हैं। तो इस जो इन्फीरियरिटी फीलिंग्स थी इसलिए वो बड़े नाराज़ थे मवाली। वो भी उमैयाद को निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने से तैयार थे। अब कहता है कि द अब्बासीद डिसेंडेंट ऑफ अरब्स, द प्रोफेट्स अंकल mustered to support of the various distant group and legitimized their bid for power by promising that the Masiha Mahdi from the family of the Prophet Ahl al-Bayt would liberate them from the oppressive Umayyad regime. Their army was led by the Iranian slaves, Abu Muslims, who defeated the last Umayyad Khalifa Marwan in the battle of the river of the Jeb. कहता है कि अब्बासियों ने जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया। उस सभी वर्गों को एक साथ यूनाइट करने में सफलता प्राप्त कर ली जो उमैयाद के अगेंस्ट थे। ये अब्बासीद कौन थे? अब्बास प्रोफेट मोहम्मद के अंकल थे और अब्बासीद उन्हीं के वंशज थे। इन्हें ये बात कह के समूहों को समर्थन प्राप्त कर लिया और यह वचन दिया कि पैगंबर के परिवार अहल अल बैत का कोई मसीहा महदी उन उमैयाद के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद के वंश का कोई एक व्यक्ति उन्हें किससे मुक्त कराएगा? उमैयादों के कुशासन से मुक्त कराएगा, जो महदी बन के रूप में, जो मसीहा बन के आएगा सभी के लिए। उसकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयाद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया था। मारवान को नदी पे लड़ाई में जब उसने हराया तो उसने इस ग्रुप का लीडरशिप अपने हाथ में ले लिया। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहर के निकट बगदाद में स्थापित की। इराक और खुरासान के अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। अब्बासी
शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उमैयाद के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोहों की परंपरा को बराबर कायम रखा। जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहने का सेंस ये है कि अब्बासियों का जो शासन स्टेब्लिश हुआ, इस अब्बासियों के शासन में अब अरबों की जगह, अरब के कबीलों की जगह या प्रोफेट मोहम्मद के जो अपने को नज़दीकी थे उनकी जगह ईरान के लोग का बोलबाला हो गया। शासन में ईरानियन लोग प्रभुत्व में आ चुके थे। नदी जो जेब नदी के किनारे लड़ाई हुई और खलीफा को मारवान ने पराजित किया, तो मारवान क्या था? मारवान मवाली था, मतलब अबू मुस्लिम, ये अबू मुस्लिम ईरानियन था और अबू मुस्लिम इनका लीडर बना अब्बासियों का। और अब उन्होंने अब्बासियों ने दो आर्मी ब्यूरोक्रेसी वर रिकग्नाइज ऑन नॉन ट्राइबल बेसिस ऑफ द इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय इराक एंड खुरासान। कह रहा है कि इन लोगों ने खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित की। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत जो पार्टिसिपेशन दिया उसमें ईरान के लोगों की अधिक भागीदारी दी। कहने का तात्पर्य ये है कि समय समय पर बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने नौकरशाही को, इस ईरानियन जो अब्बासीद, इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको वो फिर रीयूनाइट किया, पुनर्गठित किया। गैर कबीलाई आधार पर किया गया अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया, इस्लामिक संस्थाओं को संरक्षण दिया। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब्बासी राजधानी में एक मस्जिद बनी। देखिए यहाँ लिखा हुआ द ग्रेट मॉस्क ऑफ अल मुतवक्किल इन समारा, द सेकेंड अब्बासाइद कैपिटल। दूसरी अब्बासी राजधानी समारा में अल मुतवक्किल की महान मस्जिद, इसे 1850 में बनाया गया। इसकी ईंट की बनी हुई मीनार 50 मीटर ऊंची है। मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं से प्रेरित यह कई शताब्दियों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। आप अगर इस मस्जिद को देखें तो ये मस्जिद मेसोपोटामियाई टेम्पल से हाईली इफेक्टेड है, हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। आप टेम्पल आर्किटेक्चर मेसोपोटामिया का पढ़िए, वहाँ पे आपको ऐसे ही आर्किटेक्चर जहाँ का टेम्पल मल्टी स्टोरीज थे, ऊपर देवताओं को रखा जाता था। इस तरह मस्जिद भी उस तरीके से बनाए इन्होंने। तो आपको कल्चर का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ते हुए साफ साफ दिखाई देगा, जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब इन चीज़ों को देखिए, द अब्बासाई डिसेंडेंट ऑफ द अरब्स, द प्रोफेट्स अंकल, द मस्टर्ड द सपोर्ट ऑफ द वेरियस डिसअपॉइंटेड ग्रुप ऑफ द legitimized their bid for the power, promising that the missing the Mahdi from the family of the Prophet Ahl al-Bayat would liberate them from the oppressive Umayyad regime. Their army was led by the Iranian slave Abu Muslims, who defeated the last Umayyad Khalifa Marwan in the Battle of River Jeb. Under the Abbasid rules, Arab influence declined while the importance for the Iranian culture increased. The Abbasid established their capital in Baghdad, near the ruins of the ancient Iranian metropolis, the Ctesiphon. The army and bureaucracy were reorganized on a non-tribal basis of the ensure great participations by Iraq and Khorasan. The Abbasid ruler strengthened the religious status and the functions of the caliphs and the patronized Islamic institutions and scholars. But they were forced by the need of government and the empire to retain the centralized nature of the state. They maintained the magnificent imperial architecture and elaborate court ceremonials of the Umayyads, the regime which took pride in having brought down the monarchy found itself compelled to establish it again. I have discussed this paragraph. Okay, let us come
and break up the caliphs and rise of the sultanates. This paragraph is very long. We will read this paragraph. The first paragraph is important. आप उस पैराग्राफ को ध्यान से देखें, आपको उसमें कुछ समझ में आएगी. आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए. थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से. The Abbasid state became weaker from the 9th century. The Abbasid state became weaker from the 9th century because the Baghdad control over the distant provinces declined and because of the conflict between pro-Arabs and pro-Iranian, the factions in the army and conflict between pro-Arabs and pro-Iranian army and bureaucracy. In 810, the civil war broke out between supporters of Amin and Mamun, son of the Khalifa Harun al-Rashidi, which depends the functionalism and created a new power bloc of the Turkish slave officers Mamluk. Seized once again the competed with Sunni Orthodox for power. A number of minor dynasties arose such as the Tahrids and Samnids in Khurasan and Transoxiana, Turan or land of beyond the Oxus, and the Tulunids in Egypt and Syria. Abbasid power was soon limited to the central Iraq and western Iran. That too was lost in the 945 when the Bayaz, the cities claimed from the Caspian regions from Iran, the Dalma, they captured Baghdad. The Bayrid rulers assumed the various titles, included the ancient Iranian title, the Shahanshah, king of the king, but not that of the Khalifa. They kept the Abbasid Khalifa as the symbolic head of their Sunni subject. ओके कहता है कि अब्बासीद राज्य 9वीं शताब्दी तक आते आते कमज़ोर हो गया क्योंकि दूर के प्रांत बगदाद के नियंत्रण के नहीं रह सका. बगदाद उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया जो दूर दराज के क्षेत्र थे. और उसका एक कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में हमेशा झगड़ा होता था. सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद और ईरान समर्थक 810 में खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया. सिविल वार शुरू हो गई जिसमें गुटबंदी और गहरी हो गई. तुर्की गुलाम अधिकारियों मामलूक में एक नया शक्ति गुट बन गया. शियाओं ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की. बहुत से नए छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए. खुरासान और ट्रांसआक्सियाना यानी तुरान तथा आक्सस पार वाले इलाके में ताहिरी और ससानी वंश, मिस्र तथा सीरिया में तुलनी वंश. अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई. सन 945 तक आते आते वह छिन्न भिन्न हो गई जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र डेलाम में बुहाई नामक सिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया. बुहाई शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की जिनमें से एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह राजाओं का राजा भी शामिल था. ये बुहाइयों ने सबसे पहले धारण किया था. ये बुहाई जो कैस्पियन क्षेत्र में शासन करते थे, डेलाम के क्षेत्र में शासन करते थे, उन्होंने सबसे पहले शहंशाह की उपाधि धारण की. ये ईरानियन टाइटल्स थी लेकिन खलीफा की पदवी उन्होंने धारण नहीं की, उन्होंने शहंशाह की धारण की. उन्होंने अब्बासी खलीफाओं को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बताया रखा. उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि अब्बासीद को उन्होंने अपने में स्थान दिया था. खिलाफत के समाप्त होने के बाद खिलाफत जब समाप्त हुआ तो खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था क्योंकि एक अन्य सिया राजवंश फातिमी
की महत्वाकांक्षा थी कि वो इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के उस उप संप्रदाय इस्माइली से था और उनका दावा था कि वो पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज है, इसलिए वो इस्लाम के एकमात्र न्यायसंगत शासक हैं। वो उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से, अपनी जगह से, अपने स्थान से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया गया। उसकी स्थापना मंगल ग्रह मिरिख, ऐसे अल काहिर भी कहा जाता है, के उदय होने के दिन की गई थी। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों, कवियों और विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। कहता है कि द डिसीजन not to abolish the caliphate was thus a shrewd one, because another city's dynasties, the Fatimid, had ambition to rule the Islamic world. The Fatimids belong to the Fatimid belong to the Islamic subsect of the Shias. They claim to be the descendant from the Prophet's daughter Fatimi, and hence the sole rightful rulers of Islam. From their base in North Africa, they conquered Egypt in 969 and established their Fatimid caliphates. The old caliphate of Egypt, Fustat, was replaced by a new city, Cairo, founded on the day of the rise of the planet Mars, Merikh, also called Al-Kahir. The two rival dynasties patronized the city's administration, the protests and scholars. Between the 950 and 1200, Islamic society was held together not by single political order in the single language or culture, Arabic by the common economic and cultural patterns. कहता है कि 950 to 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा संस्कृति की एकल भाषा से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिमान के रूप में जुटा रहा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि फातिमीद के बाद किस तरीके से खिलाफत का विघटन हुआ और नए नए सल्तनत बने, नए नए राज्यों की स्थापना हुई। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।